Hello students, so in today's topic we will be solving some of the question of distance and displacement. So I suggest you all to solve the question. Alright, so let's how we will do this here. We have a point, we have a body which is initially at point P and it reaches to point Q. Okay, the body is initially at point P and it reaches at point Q. From this to point this on semicircular track. All right. So this thing is very necessary that they travel from semicircular track. Semicircular track है ना they वो ऐसे travel कर रहे हैं here. So when initial point is P and ending of the journey is point Q, you need to calculate. You need to calculate distance and displacement. Okay. Well, as I always say, forgive me for the handwriting. Okay. I hope it's clear to you. This is distance and displacement. All right. So and the length is L. Okay. This particular length is L. So how will you calculate distance and displacement? So first try yourself and then I will be solving this question. थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसको ऐसा बना देते हैं ओके ठीक है so what I was saying let me first silent my phone which I should do earlier and I'll be doing it from the next time. So guys, this is the same question here and this is the central point. Radius is r, okay, small r is given, and this is the first point where the journey is starting. So and this particular length is L. Okay, so we know that the body is running from point P to point Q and this will be the track. So this will be the distance. Alright, distance is nothing but the path travel. So this particular path which I am writing from some different color of pen, I'm saying this is actually the distance. But what will be displacement? What will be displacement? Displacement is the shortest path between initial and final position. So displacement क्या हो जाएगा? Displacement तो बिल्कुल सीधा सीधा हो जाएगा, straight line. Okay, if you can see this is straight. Okay, मैं दोबारा बना देता हूँ. मैं कहता हूँ भाई यहाँ से this particular line जो assume कि ये यहाँ पे है, ये हो जाएगा हमारा displacement. So how will you calculate displacement and distance? So देखो ये this is very very easy. ये बहुत आसान है. ये आसान क्यों है? ये आसान इसलिए है क्योंकि जब आपको ये कैलकुलेट करना है, so this can be calculated by using formula 2 by r. देखो टोटल जो circumference है, the total circumference is actually 2 by r और उसका 50% जो है 50% जो है वो हो जाएगा पाई आर. ठीक है ना भाई, टोटल 2 पाई आर है, अगर उसका मैं जस्ट 50% कर दूं ये, तो ये हमारा हो जाएगा जस्ट पाई आर. ओके, और इसका भी 50% कर दिया जाए, सो दिस इज एक्चुअली पाई आर बाई 2. सो आई राइट पाई आर अपॉन 2 विच इज गिवन एज एल. आप समझ पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ गाइस? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट हियर. देखो द टोटल सर्कमफेरेंस इज 2 पाई आर एंड 50% द 50% विल बी पाई आर और 50% का 50% which is 1/4 that is pi r by 2 and this particular pi r by 2 is given by L. ये L के इक्वल है. ठीक है, so here L is equal to pi r by 2, so this is the distance. Okay, L is equal to pi r by 2. ये जो आ गया हमारे पास, this is the required distance. पर हम लोगों को तो निकालना है displacement. Okay, here also you can calculate the value of r. Exam में आपसे पूछ सकते हैं what is the value of r in terms of L. So r is equal to 2L upon pi. R is equal to 2L upon pi. ठीक है. Now what will be displacement? Let's solve here, guys. This is r. ये जो है ये r है, ये r है, and this is the angle 90 degree. So can I write it 2r, root of 2r? आप एक चीज दिमाग में रखो बच्चों. Just minute. अगर आपके पास ये भी आर है, ये भी आर है और यू नीड टू कैलकुलेट दिस, एक काम करो इसको आप इतना ही रहने दो ना, ये आर है और ये आर है एंड यू नीड टू कैलकुलेट दिस वन. सो दिस विल बी रूट 2 आर. पाइथागोरस लगा दो. ठीक है, पाइथागोरस कैसे आप लगा रहे हो भाई? ये आपका 90 डिग्री है, सो
ठीक है, तो एक आपको ये थीटा ले लो, तो एक परपेंडिकुलर एक बेस है, दिस विल बी एक्चुअली पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनियस जो है, दिस इज हाइपोटेनियस। कैन यू सी दिस, दिस इज एक्चुअली हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है हमेशा वो जो होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास √2r। तो √2r जो है वो आ गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो कोई मुश्किल सवाल नहीं था बच्चों, सवाल बहुत बहुत ज्यादा आसान था। आपको एक सर्कुलर ट्रैक पूरा का पूरा गिवन है, उस सर्कुलर ट्रैक पे बॉडी जो है वो यहाँ से यहाँ तक जाती है। आपको पूछा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस तो ये हो गया पूरा का पूरा विच इज πr/2, और डिस्प्लेसमेंट हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज √2। So this is for the circle है ना, this is for the circle and this particular angle was 90 degree, तो ये तो आपको given है। Guys, I'm asking you a simple question, what happens and how will you solve distance and displacement when if I can draw this again, yeah, और बड़ा बनाते हैं ना, कोई कमी नहीं है। So guys, अगर आपके पास again this is radius r, दिस इज रेडियस आर है ना, एंड रेडियस इज आर लाइक साइकिल की ताड़ी है ना, साइकिल के स्पोक्स जो है हर तरफ में वो रेडियस आर ही है। सो बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट P बट एंड्स इट्स जर्नी एट सम पर्टिकुलर पॉइंट Q, then how will you solve this? And this angle is theta, this angle is theta, okay, ये आपके पास थीटा है। एंड वी ऑल्सो नो दैट कि यार ये जो है ये भी हमारे पास आर होगा, अरे ये भी तो रेडियस होगा ना आर, every line which starts from the center and meets at the circumference will be r। तो अब इस वाले r को मैं हटा देता हूँ, अब इसका मेरे पास कोई रोल नहीं है, okay, so that you do not confuse। Alright, now in this case what will be distance and what will be displacement? So this is r, this is r, this is point P, this is point Q, and the body travels from this to this on semicircular track. This length is again L, okay, so PQ is equal to L। Again you need to calculate distance and displacement। आपको फिर से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, बताइए कैसे करेंगे। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, सॉल्व द क्वेश्चन। Well guys, in this kind of question let's talk about some brilliant mathematics। Brilliant mathematics I mean just a minute, let me show you with बहुत बड़ा डायग्राम, और बड़ा, इतना ठीक है। सो गाइस, यहाँ से हम फिर से बात करते हैं बच्चों, ये हमारे पास एक लाइन है, सेंटर से यहाँ आ रही है, ये जो है ये यहाँ पे है, ये है थीटा, दिस इज पॉइंट Q, दिस इज पॉइंट P, ओके, दिस इज लेंथ L। अब यहाँ क्या करना है गाइस, देखो दो बातें हो सकती हैं, कौन कौन सी, नाउ प्लीज पे अटेंशन, आई एम डूइंग अ वेरी गुड मैथ्स हियर। So if you draw a perpendicular here, देखो अगर आप perpendicular draw कर देते हो, well this is also r, this is also r, so अगर आप perpendicular draw करते हो तो इसके आप दो components बना सकते हो, you can break this radius in two components, one will be r cos theta and this will be r sin theta। Please beware guys, this r cos theta is not equal to r, ये जो r है, ये जो r मैंने यहाँ लिखा है, लेट मी यूज सम डिफरेंट कलर ऑफ पेन, ये जो r मैंने लिखा है आपके सामने, ये जो बेटा दिस इज कंप्लीट रेडियस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस है, मगर ये जो r cos थीटा है ये सिर्फ यहाँ से ओनली दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज r cos थीटा। अरे जिसको ब्रेक किया उससे दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर डालो, सिर्फ उतना ही डिस्टेंस r cos थीटा है, एंड सिमिलरली सिर्फ इतना ही डिस्टेंस r sin थीटा है। इफ यू वांट दिस पॉइंट टू मीट हियर, अगर आप इसको यहाँ से यहाँ पे ऐसे खींच देते हो तो ये r sin थीटा से सिर्फ r बन जाएगा, रेडियस r हो जाएगा, ओके, समझ गए ना बात।
सो ये है ओके पर इससे तो हमारा काम चलेगा नहीं. ऑल वी नीड टू नो दिस डायरेक्ट डिस्टेंस. हमें तो ये भाई हम फंसेंगे इसमें, हमें तो ये चाहिए दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ना. तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए हमको फिर से ब्रेक करना पड़ेगा बट इसको ब्रेक नहीं करना है. इसको हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे. उसका रीजन क्या है, आई वॉन्ट दिस डायरेक्ट डिस्टेंस, आई वॉन्ट दिस डायरेक्ट डिस्टेंस. ठीक है. अब ये डायरेक्ट डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों, एक सिंपल सी बात है यार, इसको हमको ब्रेक करना है. यहां से एक आपको देखो 90 डिग्री, वी नीड 90 डिग्री ना, वी नीड 90 डिग्री, अदरवाइज ये रिजोल्यूशन कैसे कर पाओगे आप वेक्टर्स का, अदरवाइज तो रिजोल्यूशन पॉसिबल हो नहीं पाएगा. तो हमको तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा. सो वी आर जस्ट ब्रेकिंग इट. यहाँ से शुरू करके यहाँ मिला दिया, दिस इज 90 डिग्री. नाउ दिस इज ओनली थीटा बाई 2. अरे थीटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये भी थीटा बाई 2 हो गया. ठीक है. दिस इज ओनली थीटा बाई 2 नाउ. अच्छा ये थीटा बाई 2 है सामने और इसको अब हमें निकालना है. सो वी नो दैट दिस इज आर, है ना. अब हमें पता है कि यार इस आर का एक कंपोनेंट जो है, ठीक है, वो ये हो जाएगा. ओके. और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा. तो इसका जो है एक कंपोनेंट तो देखो 90 डिग्री सीधा सीधा है. सो दैट इज आर कॉस थीटा एंड दिस विल बी ये जो यहां से यहां, दिस विल बी आर साइन थीटा. ठीक है. ये आर साइन थीटा है तो ये भी आर साइन थीटा होगा. सिमिलरली ये भी आर साइन थीटा होगा, है ना. यू कैन अप्लाई द सेम थिंग हियर. ठीक है. तो इस इट मींस डिस्प्लेसमेंट जो है पी क्यू जो है वो हो जाता है 2r साइन थीटा बाई 2r साइन थीटा बाई. ओके. और डिस्टेंस इज वेरी इजी. डिस्टेंस कैसे इजी है, डिस्टेंस इसलिए इजी है कि आप अगर इसको वापस से मिटा दो, आप इसको वापस से भी मिटा दो, इस पूरी प्रॉब्लम को खत्म करो, तो डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है. देखो ये डिस्प्लेसमेंट तो अपनों ने निकाल लिया, डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है. उसका रीजन ये है कि दिस इज थीटा और थीटा के सामने जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है. पर बात ये है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, मींस एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. सो एल इज इक्वल टू आर थीटा. ओके. L is equal to r theta. So it means the distance is actually here. The distance is actually here r theta and displacement which is pq. Displacement जो है वो 2r sin theta by 2. I hope it cleared the concept और आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी. So guys we will meet in the next lecture. Thank you.